السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد. عقیدے کی کلاس ختم کرنے کے بعد ہم فقہ کی کلاس میں ہیں، اور جیسا کہ میں نے بتایا اس میں بھی جو ہے آخری لیسن جو 13واں سبق ہے مبطلات الصلاۃ اور مکروہات الصلاۃ ہم پڑھ رہے ہیں. نماز کو باطل کرنے والی اور نماز کو مکروہ کرنے والی چیزیں، یہی لاسٹ ہے، اسی کے ساتھ لیول ختم ہوگا انشاءاللہ. پچھلی کلاس میں اور اس سے پہلے بھی ہم نماز کا بیان آپ کو بتا رہے تھے کہ نماز اور اس کی تفصیلات، ٹھیک ہے، یاد ہوگا آپ کو کہ پچھلی کلاس میں ہم نے نماز کے ارکان، واجبات، سنتیں پڑھی. ہم نے ارکان ہوتے ہیں، واجبات بھی ہوتے ہیں، سنت بھی ہوتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو ہے ارکان میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے، جیسے کوئی رکن، جیسے سلام نہ پھیریں، ترتیب چھوڑ دیں، سورہ فاتحہ چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، تو نماز باطل ہو جائے گی. رکن کا یہ مطلب ہوتا ہے. واجبات میں سے کوئی واجب کام چھوڑ دیں، جیسے تشہد وغیرہ ہے کے لیے بیٹھنا، تو اس سے جو ہے سجدہ سہو آپ کو کرنا پڑے گا. نماز کی سنتوں میں سے کوئی سنت چھوڑ دیں آپ، جیسے انگلی سے اشارہ کرنا تحیات وغیرہ میں، تو اس سے نماز باطل نہیں ہوگی. تو یہ فرق ہے ارکان میں اور واجبات میں اور سنت. رکن چھوڑ دیں تو نماز باطل، واجب چھوڑ دیں تو اس کا جو ہے کیا بولیں گے، اس کی بھرپائی ہو سکتی ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں، یا کیا کہتے ہیں وہ سجدہ سہو اگر کر لے تو کافی ہو جائے گا. سنت چھوڑ دیں تو نہ نماز باطل ہوگی نہ سجدہ سہو کی ضرورت پڑے گی. لیکن یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کہ نماز آپ نے نہیں پڑھی، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آپ نے نماز نہیں پڑھی، ایسے کہا جا سکتا ہے. اس کے بعد آگے جو ہے آج کی کلاس میں 2 چیپٹر سے، چھوٹے سے، بڑے اہم ہیں یہ بھی. نمبر 1 مبطلات الصلاۃ، نماز کو، صلاح کو باطل کرنے والی چیزیں. کہتے ہیں کہ 5 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں سے کوئی بھی کام ہو جائے تو آپ کی صلاح، نماز باطل ہے، انویلڈ ہوگی. ٹھیک ہے، ان میں پہلی چیز، جان بوجھ کر نماز کا کوئی رکن یا نماز کا کوئی واجب کام یا نماز کی کوئی شرط کو چھوڑ دینا. رکن، واجب یا شرط کو چھوڑ دینا جان بوجھ کر. مثال کے طور پر جان بوجھ کر سورہ فاتحہ نہیں پڑھ رہے آپ، تو یہ تو خطرناک ہے مسئلہ. جان بوجھ کر وضو نہیں کر رہے، شرط ہے نماز. واجب کام جیسے بھی ہم نے بتایا، تشہد میں بیٹھنا، جان بوجھ کر نہیں بیٹھ رہے، اٹھ جا رہے آپ تیسری رکعت کے لیے، معلوم ہے بیٹھنا ہے، یاد بھی ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی آپ اٹھ گئے جان بوجھ کر، تو یہ تو غلط ہے. نماز کوئی کھیل نہیں ہے، مذاق نہیں ہے، عبادت ہے بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی. تو کہتے ہیں تعمد ترکی رکن او واجب او شرط من شروط الصلاۃ، تینوں میں سے کوئی بھی کام، رکن یا واجب یا شرط، جان بوجھ کر چھوڑنا. غلطی سے اٹھ گئے یا تحیات میں بیٹھنا تھا، نہیں بیٹھ گئے، واجب کام چھوڑ دیا. بھول گئے وضو کرنا، چلے گئے نماز پڑھ لیے، شرط چھوڑ دیے. سورہ فاتحہ پڑھنا بھول گئے، کھڑے رہے، خالی سوچتے رہے کیسا کرنا، فیس بک پہ اپلوڈ کب کروں، کیا کروں، سوچتے رہے، سورہ فاتحہ ہی نہیں پڑھے، چلے گئے، رکن چھوڑ دیے. تو یہ ایک غلطی سے چھوڑنا کیا ہے. جان بوجھ کر اگر آپ چھوڑتے ہیں تب تو جو ہے نماز آپ کی باطل ہو جائے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ پہلی چیز ہے 5 میں سے. دوسری چیز جس سے جو ہے نماز باطل ہو جائے گی وہ ہے وضو کا ٹوٹ جانا. وضو کا ٹوٹ جانا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں ہیں، سجدے میں ہیں، قیام میں ہیں، وضو ٹوٹ گیا آپ کا. ظاہر بات ہے وضو تو شرط ہے نماز کے لیے، معلوم ہے سب. تو کیا اب کسی کا وضو ٹوٹ جائے نماز میں، نماز کے دوران، کیا اس کی نماز باقی رہے گی؟ نہیں، باطل ہو گئی. اور باطل کا مطلب یاد رکھنا، نماز باطل ہو گئی.
तो अब क्या करे, वो जाए वजू करे, ठीक है, आने के बाद जहां वजू टूटा था वहां से कंप्लीट करे या शुरू से पढ़े। हम क्या पढ़ रहे हैं, नमाज बातिल हो जाएगी, नमाज को बातिल करने वाली चीजें पढ़ रहे हैं। तो अगर नमाज जब वजू टूटने की बिना पर, सुनिए गौर से, मैं आराम से पढ़ा रहा हूँ ताकि वो याद रहे क्लास में चीजें जो पढ़ाई, क्योंकि ये तकरीर नहीं है, क्लास है। नमाज में अगर हमारा वजू टूट जाए और वजू टूटने की वजह से नमाज बातिल हो रही है, जब बातिल नमाज हो गई, वजू टूट गया, नमाज बातिल हो गई, क्या उस नमाज पर जो बातिल हो गई हम बिना कर सकते हैं? बिना मतलब उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। एक चीज खलास इनवैलिड हो गई, जैसे मिसाल के तौर पर 4 रकात ज़ोहर आप पढ़ रहे थे, 2 रकात के बाद वजू टूट गया, गए वजू किया कि 3rd 4th पढ़ के सजदे सो करेंगे, नहीं, नमाज बातिल हो गई आपकी, आपको शुरू से पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी नमाज शुरू से पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि नमाज आपकी इनवैलिड हो गई या बातिल हो गई। बातिल पर टिकाऊ नहीं, बिना बोलते हैं उसको, बिता अरबी में, टिकाऊ बोले, उर्दू में जो भी बोले, बातिल पर आप कोई चीज फिट नहीं कर सकते हैं या बातिल को कंटिन्यू नहीं कर सकते। हो गया, खलास खलास, ठीक है। दूसरी चीज है नंबर 3, अल कलाम और दहक अल मुतअम्मिद, जानबूझकर बात करना या हंसना नमाज में। जैसे मदरसों में जो है बाशरीर बच्चे होते थे, ठीक है, मदरसों की एक बात बता रहा हूँ मिसाल समझने के लिए। उसमें यह था कि उस्ताद की सख्ती होती थी कि भाई 1 रकात भी नहीं छोड़ना किसी भी तालिब इल्म की, 1 रकात भी नहीं छोड़ना। तो जमात होती मस्जिद में, नमाज पढ़ते तलबा सारे, अब बाज़ तलबा ताखिर से आते तो उनकी 1 रकात छूट जाती। अब मिसाल दो तालिब इल्म पढ़ रहे हैं एक साथ, ये शुरू से पढ़ रहा है जमात में, ये तालिब इल्म आया और आकर मिला, इसकी 1 रकात छूट गई, सलाम फेरने के बाद उठेगा ना, ये क्या करता, उसको सलाम फेरने से उठता तो उसको बिठा लेता, उस्ताद देख लेंगे, नंबर नाम आ जाएगा। वो कैसे होता था, सलाम फेरते ही उस्ताद जो है चेक करते थे कौन उठकर जो है अपनी छूटी हुई रकातों को कंप्लीट कर रहा है, मतलब वो लेट आया इसका मतलब, तो इसको उठने से ही रोक देता था, बात करता था, बैठ जा बैठ जा, क्या बोलता था ये तालिब इल्म, ये शरीर जो था तालिब इल्म, इसको बोलता था बैठ जा वरना नाम लिख दिया, नाम लग जाएगा, नमाज में क्या है। तो ये तो बात हुई जानबूझ कर। तो ऐसे अगर कोई नमाज में जानबूझकर बात करता है, बैठे बैठे बेगम चाय लेकर आई, वहाँ सामने रख दो, नमाज पढ़ते पढ़ते बेगम को बोल रहा है वहाँ सामने रख दो, टेबल पे रख दो, टेबल पे रख दो, क्या है भाई, नमाज पढ़ रहे हैं, आप बात भी कर रहे हैं, टेबल पे चाय रखो बोल रहे हैं आप, जानबूझकर। अच्छा, गलती से किसी से कोई बात निकल गई, क्या होता कि क्या नहीं, ऐसा ऐसा निकल गया, क्या होता कि क्या नहीं। हमारे साथ एक प्रॉब्लम मैं बताता हूँ, अल्लाह हमारी नमाजों को ठीक करे, हमें तौफीक दे। हम जब नमाज पढ़ने जाते हैं ना, तो दुनिया भर की चीजें अपने दिमाग में लेकर जाते हैं। हद ये है, वजू करते करते लोग वजू खानों में, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, यहाँ भी हो, वजू खाने में वजू करते करते दुनिया की बातें कर रहे हैं। क्या हुआ था, फिर मीटिंग हो गई थी और क्या बोला फिर बॉस, कब मिलो, बोले अच्छा, धो रहे वजू कर रहे, बात कर रहे। अच्छा, अभी बात तो चलते रहती है, जैसे सफ़ा मरवा की सही में भी तवाफ से शुरू होती है बात, और मरवा पर जो आखिरी चक्कर होती है ना, वहाँ टॉपिक खत्म होती है दोस्तों की, दोनों की, क्या कर रही है ये लोग, तवाफ सही कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं या मजाक कर रहे हैं लोग। जैसे बातें करना है तो ये हमारे पास ममशात है ना यहाँ पर जुद्दा में, वॉकिंग एरिया, वहाँ जाकर जो है वॉक करते करते बात करना था, जबरदस्त जगह है माशाल्लाह, वॉक करते करते बात करो। सफा में बात कैसे कर रहे भाई आप, तवाफ कर रहे बात कर रहे आप, वजू कर रहे बात कर रहे, वजू करके मस्जिद को जाता अंदर, अच्छा फिर पोछ लेते, अंदर जाते, घड़ी लगा लेते, रास्ते में बात कर रहे, और वहाँ ठहर के भी फिर बात करते हो, घड़ी में देखते हुए आ रहे शायद इमाम साहब आ रहे, हाँ 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 बोलो क्या बोल रहे थे तुम,
आते इमाम साहब, हाँ बोलो क्या बोल रहे थे आप, बोलो जाने इमाम साहब, अल्लाह अकबर तक वही टॉपिक चल रही है। जब अल्लाह अकबर होगा तो उसके बाद भी जो है वही चीज़ दिमागों में है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, खुशू खुजू कैसे रहेगा। मैं काफ़ी सोचा इसके बारे में, मैं पर्सनली बता रहा हूँ। मैं मुझे ये हल नज़र आया कि हम जो है दुनियावी चीज़ों को इबादत में खलल अंदाज होने मत दें। उसके लिए क्या तरीका है, वज़ू से पहले अपने दिमाग को खाली कर दें आप। जब वज़ू कर रहे हैं खलास, वज़ू के बाद भी कोई दुनिया की बात, कोई मीटिंग, कोई चीज़ नहीं, खलास वज़ू कर लिए, चले जाइए आप नमाज़ को। अच्छा मस्जिद चले गए, कोई दुनिया की बात नहीं, कोई फ़ोन नहीं। फ़ोन तो मैं तो कह रहा हूँ ना वल्लाहि आप स्विच ऑफ कर दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। दुनिया का कोई आदमी आपको जो है ये मजबूर नहीं करेगा या कोई परेशान नहीं करेगा कि आप कैसा नहीं उठाए मेरा फ़ोन, मैं कॉल कर रहा था। अरे भाई मस्जिद में थे, नहीं उठाते ख़त्म। नहीं उठाते, आपका फ़ोन उठाना वाजिब है हम पर। आपका फ़ोन नहीं उठाएँगे तो जन्नत नहीं मिलेगी। ये अजीब मसले लोग समझते हैं, भाई फ़ोन उठाना ज़रूरी है समझते हैं। ये अखलाक है, ठीक है, आप ये अलग मसले होते हैं। आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका बॉस आपको फ़ोन कर रहा है, ये मैं डिटेल पे नहीं जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं मस्जिद है, नमाज़ है, खलास सबको मालूम है। हैरानी तो उस वक़्त होती है, एक ही शहर में लोग रहते हैं, एक ही वक़्त हो, चलो दम्माम वाले ने जिद्दा वाले को फ़ोन किया, दम्माम वाले ने, जुबैल वाले ने जिद्दा वाले को फ़ोन किया, वो मस्जिद में था, उसको नहीं मालूम बेचारे को कि आधा घंटा पहले इनकी नमाज़ होती है या आधा घंटे बाद इनकी नमाज़ होती है, नहीं पता। ये अलग बात। एक ही शहर में रहते हो, मालूम है सारी दुनिया को कि आप 12 साढ़े 12 को कॉल कर रहे हो, साढ़े 12 बजे दोपहर में कहाँ रहेंगे लोग? ईमान वाले लोग मस्जिदों में रहेंगे ना। मजबूरी एक अलग चीज़ होती है, और वो कॉल नहीं रिसीव कर रहा है तो क्या मतलब इसका? ज़ाहिर 6 बजे आप कॉल कर रहे हो, मगरिब का वक़्त है, भाई नमाज़ में लोग रहे हैं। बहरहाल समझने की चीज़ है। जानबूझकर बात करना, बातें नहीं करना चाहिए, ना जानबूझकर, ना गलती से। गलती से अगर हो जाए तो नमाज़ नहीं ख़त्म होती। ठीक है? चलिए। हँसना जानबूझकर, इससे भी नमाज़ बातिल हो जाएगी। हाँ, ऐसे ही जो है पुरानी बात को याद आ गई, मतलब हँसी निकल गई आपकी, गलती से निकल गई तो नमाज़ नहीं जाएगी। 3 चीज़ें। पहली चीज़ जानबूझकर रुकन या वाजिब या शर्त छोड़ देना। नंबर 2 वज़ू टूट जाना। नंबर 3 जानबूझकर हँसना या बात करना। नंबर 4 जानबूझकर खाना या पीना, इससे भी नमाज़ टूट जाएगी। कैसे? जेब में बिस्किट थी, चॉकलेट था, नमाज़ पढ़ रहे थे, भूख लग रही थी, हाथ डाले, निकाले, थोड़ा खाए, रख दिया फिर। रज़ा साहब पढ़ा रहे हैं, रात चल रही है, आप जो है पीछे खा रहे हैं, जानबूझकर खा लिए। गलती से हाथ डाले, कोई चने का दाना था लेके मुँह में डाल लिए गलती से, या छोटी 1 रियाल की जो है वो भी 1 रियाल कहाँ रही है, बढ़ गई थोड़ी-सी। तो वो बॉटल आप ले लिए जूस की, उसको खोल के पी रहे हैं गलती से, तो कोई बात नहीं। जानबूझकर पिएँ, खाएँ, तो आपकी नमाज़ बातिल हो जाएगी। 5वीं चीज़ जिससे नमाज़ बातिल हो जाएगी, ज़्यादा हरकत, जो नमाज़ की हरकतों में से नहीं है। एक होती है नमाज़ की हरकत। नमाज़ की हरकत क्या है? रफ़ुल यदैन नमाज़ की हरकत है, नमाज़ में करना है। झुकना सजदे के लिए नमाज़ की हरकत है। रुकू करना नमाज़ की हरकत है। लेकिन आउट ऑफ द नमाज़, जैसे खुजाना, मोबाइल देखना, ठीक है, कपड़ों को ठीक करना, खुतरे को ठीक करना, टोपी को ठीक करना, ज़्यादा हरकतें, इसमें तफ़सील में न जाए, फ़ुक़हा ने 3 मरतबा करेगा, 2 मरतबा करेगा, 5 मरतबा करेगा। ये है कि हाँ, इंसान है नमाज़ में खुजली हो रही है, जिसको पाकिस्तानी हमारे भाई खुजली बोलते हैं। इंडिया में खुजाना बोलते हैं उसको, हमारे तरफ जो है। तो खुजाना, खुजली जो भी बोलें, थोड़ा-सा हो रहा है, बस हो गया, ऐसे हो रहा है थोड़ा-सा, ऐसे थोड़ा-सा, ठीक है, कंटिन्यू कर रहा है, करते जा रहा है नमाज़ में, ये गलत है। ज़्यादा हरकत भी नमाज़ में, क्योंकि ये हरकत नहीं होनी चाहिए, खुशू-खुशू रहना चाहिए। इससे भी नमाज़ क्या हो जाएगी? बातिल। ये 5 चीज़ें जो नमाज़ को बातिल कर देती हैं। जानबूझकर रुकन या वाजिब या शर्त को छोड़ देना, वज़ू टूट जाना, जानबूझकर खाना या पीना, हँसना या बात करना, ज़्यादा हरकत। इसके बाद आखिरी पॉइंट इसी लेसन का, और वो है मकरूहातुस सलाह। नमाज में मकरूह यानी मकरूह नापसंदीदा हरकतें, नापसंदीदा चीज़ें नमाज में, वो भी 5 इन्होंने ज़िक्र की हैं। और उनमें से पहली चीज़ है दोनों आँखों को आसमान की तरफ उठाना
या आंखें बंद कर लेना या इधर उधर देखना। आंखों का काम जो है, आंखों से तीन में से कोई भी काम करना, जानबूझ के बंद कर लेना, जैसे ऐसे बहुत लोग समझते हैं ऐसे आंखें बंद कर लेंगे तो उससे खुशू खुजू बहुत रहेगा, ये मकरू चीज है। आंखें खुली रखे रहो, ऐसे आंखें बंद करेंगे तो जो है काफी ज्यादा लिल्लाहियत आएगी, ऐसे समझते हैं लोग, ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंखें बंद करके नमाज नहीं पढ़ते थे, आंखें खुला रखे नमाज पढ़ते, या ऊपर देखना ऐसे, ये जो नमाज पढ़ रहे बालू खिड़की के पास नमाज पढ़ते थे, खुला अबर है, अभी भी अबर है, वैसे मैं नमाज तो नहीं पढ़ रहा हूँ, दस दे रहा हूँ आपको। अबर जो है पिछली जुमा के जैसे आज भी बहुत है माशा, अल्लाह से दुआ अल्लाह बारिश बरसे, आमीन। या दाएं बाजू देखना है आंखों से, जानी नमाज उनके कौन से कलर की है इनकी जानी नमाज कौन से कलर की है, ये कैसे ठहरे हैं, क्या कपड़े पहने हुए, भाई आप सामने देखिए। सुन्नत ये है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका हमें मिलता है, अल्लाह अकबर से सलाम फेरने तक निगाह सजदे की जगह से नहीं हटती, सजदे की जगह पर, ये सुन्नत है। आप इधर उधर देखेंगे तो इससे ये मकरूह होगी नमाज। गैर जरूरी हरकत, ये जरूरत थी जो मैंने बताया, कुछ एकदम कोई चीज ऐसा लगा कि चलेगी पीछे, ऐसा आपने किया, ये जरूरी हरकत है। या एक जरूरी हरकत ये होती है कि ये मजबूर, एक जरूरी हरकत ये है कि सामने की सफ में से एक आदमी का वजू छूट गया, वो सफ छोड़ के चला गया, अब आप एक स्टेप आगे बढ़ा के उस खाली जगह को फिल करें, इससे आपको अजर भी मिलेगा, गुनाह भी मिटेगा, जैसे दर्जा भी बुलंद होगा, हदीस में बात। ये जरूरी हरकत थी, वरना वो सफ की जगह खाली रह जाती थी, इनकम्प्लीट सफ रहती थी। गैर जरूरी हरकत नमाज को मकरूह करती है। नंबर 3, पेशाब पाखाने को रोकना, वॉशरूम की जरूरत है, आप रोक रहे हैं, ये भी मकरूह है। आप नमाज में हैं, आपको इस्तिंजा की जरूरत हो रही है, आपको वॉशरूम जाना है, आपको हम्माम को जाना है, आप रोक रहे हैं। तरीका तो ये है, जैसा कि मालूम है सबको, कि आप नमाज के लिए प्रिपेयर हो, अज़ान से पहले ही अज़ान हो गए, चलो कम से कम बाद नमाजों में तो वक्त मिलता है, जैसे ईशा वगैरह में। खैर आजकल लॉकडाउन ये क्या बोलते कोरोना वगैरह की वजह से टाइम कम दिया जा रहा है, तो आजकल के हिसाब से इंसान मालूम है भाई इतने बजकर इतने मिनट पर अज़ान होती है, तो आप उससे पहले अपने आप को फारिग कर लें ज़रूरियात से, या कम अज कम क्या बोलते हैं अज़ान के फौरी बाद जाकर भी अपने आप को फारिग कर लें। जब वॉशरूम वगैरह से फारिग हो जाएंगे तो आपकी नमाज में किसी किस्म का खलल नहीं होगा। चलो फिर भी बताते हैं उलमा कि अगर आपको इस्तिंजा की या हम्माम की जरूरत पड़ी तो आप उसको रोकें, ये मकरूह है, इससे आपका दिमाग बिजी हो जाएगा, खलल हो जाएगी नमाज में, और खुशू खुशू बाकी नहीं रहेगा। चौथी चीज जो नमाज की मकरूहात में है, खाना हाजिर है, ख्वाहिश भी है, और फिर नमाज पढ़ रहे हैं आप, भूखे थे, खाना रेडी है और ख्वाहिश हो रही है, दिल बोल रहा है, जिसको हमारे पास बोलते हैं, दिल बोल रहा है कि खा ले, दिल कह रहा है कि हम खा लें, पहले मैं नमाज पढ़ के आऊंगा फिर खाऊंगा, भूख लग रही है, खाना हाजिर है, दिल भी बोल रहा है, आप जाके नमाज पढ़ रहे हैं। अब आप इमाम हमजा कब सलाम फेंकते कि कब पहला निवाला मुंह में डाला, कब सलाम कब पहला निवाला, सलाम निवाला, इसी में घूम रहा है दिमाग। सलाम फेंकते फौरन जाऊंगा, किसी से बात नहीं करूंगा, भागूंगा, बैठूंगा, हाथ धोऊंगा, फौरन जो है खाऊंगा। अरे भाई खा लेते आप, पहले ही खा लेते। एक तरतीब होती है लाइफ की, टाइम टेबल होना चाहिए लाइफ में, खाने का वक्त, नमाज का वक्त, ज़रूरियात का वक्त, मुलाकात का वक्त, ठीक है, फ़ोन चेक करने का वक्त। लेकिन हमारे पास सारा वक्त फ़ोन में जा रहा है, थोड़ा वक्त खाने और नमाज के लिए हमने रखा है पूरे वक्त में से। तो खाना हाजिर हो तो ऐसा नहीं होना चाहिए, खाना खा लेना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से है भाई, अगर आप पढ़ के देखिए इस चैप्टर को, नींद आ रही है, वॉशरूम जाना है, खाना है, तो नमाज नहीं है ऐसी हालत, आप पहले अपने आप को जरूरियात से फारिग कर लें। हत्ता कि नींद भी आ रही तो हदीसों में कि नींद बहुत आ रही तो आदमी बैठ जाए, थोड़ा लेट जाए, अपनी नींद को भगाए, उसके बाद उठकर नमाज पढ़े। ये सब तरतीब करने पर है और कुछ नहीं है। रात में 3 बजे अगर कोई सोएगा तो फजर की नमाज में तो नींद आएगी, जाहिर बात है, कॉमन बात है। आदमी भूखा जाके नमाज में, हालांकि खाना था, टाइम था, सब कुछ था, लेकिन वो अगर खाना न खाए, मस्जिद चला जाए, पहले अल्लाह का हक बाद में पेट का हक, बाद लोग जरा ज्यादा होते हैं, इल्म नहीं रहता, नहीं उलमा की सोमत रहती है। 2 प्रॉब्लम जिंदगी में कभी नहीं होना, इल्म नहीं रहना, उलमा नहीं रहना साथ।
یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو برباد کر دیں گے. علم نہیں رہیں گے, گئے جہالت کی وجہ سے ایسے ایسے کام ہو جائیں گے, اللہ کی پناہ جو انسان. یا دوسری چیز علماء کی صحبت بھی نہیں ہے, صحبت نہیں ہے, گائیڈنس نہیں ہے, تب بھی جو ہے آپ برباد ہو جائیں گے. جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روشنی چاہیے, روشنی والوں کی صحبت چاہیے. پانچویں اور آخری چیز جو نماز کے مکروہات میں سے ہے وہ ہے ایسی جگہ میں نماز پڑھنا جہاں تصویریں ہیں. یہ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے. جیسے آپ ایک ایسے روم میں یا ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں دائیں بائیں اوپر جو ہے فوٹوز لگے ہوئے ہیں, یہ بھی ایسی چیزیں ہیں جس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. اسی کے ساتھ یہ چیپٹر ختم ہو گیا الحمدللہ, اور اسی کے ساتھ لیول 1 اس کا فقہ کا بھی ختم ہو گیا.